ठीक है, तो आपका थोड़ा सा करियर टच करते हैं, इफ यू अलाउ। प्लीज प्लीज। तो आपने कहाँ कहाँ सर्विसेज दी है मेजर, अगर मैं माइलस्टोन बोलूँ तो? शुभम, सबसे पहले तो देखो, मैं एक फौजी का बेटा हूँ, तो आई एम अ सेकेंड जनरेशन आर्मी ऑफिसर. My father was in the Corps of Signals, which looks after the telecommunication of the entire Indian Army. Cyber and ये सारी चीजें जो आजकल हम सुनते हैं. My schooling, after every 2-3 years I had to change my school because father की postings होती थी. मेरी खुद 18 postings हुई हैं 37 साल में. तो मेरी बच्चों को भी मूवमेंट ऐसी हुई है. I have 2 daughters. They're doing well, but then they had to struggle. हर एक 2 साल बाद स्कूल बदली होता था. So those were the challenges. Then my first sense of achievement was when I was selected for the National Defence Academy at the age of 16 and a half years. So that was the first time I experienced a sense of success, a sense of achievement. Joined the NDA. जिंदगी में कभी फेलियर नहीं देखा, बट आई वॉज रेलीगेटेड इन एनडीए फॉर 1 term on medical grounds. So I lost 6 months. So that was a setback to me. But then I had to overcome that setback. और इसलिए मैं बोलता हूँ कि बच्चों को that failure is only a feedback. Don't take it as the end of your life. There is nobody in this world जिसने failure encounter नहीं किया. So we have to understand that. So in my 4th term I was delegated, and in my 6th term I won the gold Scotch medal of the National Defence Academy. And when I was commissioned into Army Ordnance Corps, in my young officers course I got the silver medal. So I'm just saying that take a failure as an aberration. अगर आप में वो रिजॉल्व है, यू हैव द मेंटल स्ट्रेंथ. विंग कमांडर अभिनंदन का एग्जांपल लिखिए. He had the mental, physical strength even after being in custody of the Pakistanis. He emerged a stronger person, and we saw him after he was released. So that is the result. So, and after I was commissioned in my VIOS, my next sense of achievement when I was selected as the ADC to the governor of Tamil Nadu. I was 26, 27 years of age. I was a young captain. I was selected as ADC. It was a proper interview. You had to go through merit and all that. So Dr. P.C. Alexander was my governor, one of the finest persons, and I was in Tamil Nadu. Then slowly I was selected for the Defence Services Staff College, because that's again a very, very competitive exam, and so many thousands of officers appear. It is like the IAS of the Indian Army. तो वेलिंगटन में चले गए वहाँ पे. फिर उसके बाद I had a flair for academics a lot. So I did my MBA. I took study leave in the army only. I did my MBA. And when I was a brigadier, I did my PhD in management from Barkatullah University, Bhopal. तो मुझे जहाँ पर भी opportunities मिली हैं अपने life में, मैंने I have always tried to gain that extra mile. I have tried my best to get myself more educated. I have tried my best to gain more knowledge so that I can bring value to my profession. जो मैं करना चाहता हूँ जिंदगी में और जो मैं फौज में करना चाहता हूँ उसको मैं अच्छी तरीके से करूँ, तो मुझे उसके लिए नॉलेज, स्किल्स होने चाहिए और कॉम्पिटेंस होना चाहिए. और ये नॉलेज, स्किल और कॉम्पिटेंस आपको एजुकेशन से ही मिलता है और किसी चीज़ से नहीं मिलता. तो पहला आर्मी में जाके लाइफ लेसन क्या था, याद है आपको? Lesson
And the foremost lesson of yours in the army, what I feel is you must learn how to build your character, because leadership की जो नींव है वो आपका कैरेक्टर, एंड कैरेक्टर को मैं 3 चीजों में सम अप करूंगा जो एक आर्मी का लेसन है: इंटेग्रिटी, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। ये 3 वर्च्यूज इंडियन आर्मी के आपको प्रैक्टिकली उसकी सोशल फैब्रिक में मिलेंगे, एंड दैट इज व्हाई द इंडियन आर्मी इज नोन एज द लास्ट बैस्टियन ऑफ द कंट्री। जब सब फेल हो जाते हैं तो आपकी फौज ही है जो आपको बचाती है। तो इसीलिए ये जो चीजें सिखाई जाती है आर्मी में, आपके जो आपके लीडरशिप, आपके लेसन्स हैं, दे आर बिल्ट अपॉन इंटेग्रिटी, लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी। So, through your channel, I want to give this message to all कि जिसको भी अपनी जिंदगी में एक स्ट्रॉन्ग लीडर बनना है, बिकॉज हम सबको लीडर बनना है, अपने अपने क्षेत्र में हम लीडर हैं। एक स्कूल में भी थे तो अगर आप क्लास मॉनिटर थे तो आप लीडर थे, यू वर मेंटेनिंग द डिसिप्लिन ऑफ द क्लास। सिमिलर इन योर लाइफ, यू विल बी अ टीम लीडर। आप प्रोजेक्ट्स आपको दिए जाएंगे, प्रोजेक्ट को आप हेड करेंगे। सो वेर एवर यू आर अ लीडर, बट दीज 3 क्वालिटीज इफ यू हैव इन यू, एंड इफ यू even don't have in you, you can always build it upon you. ये कोई आदमी पैदा नहीं होता है इस क्वालिटी से, हर एक आदमी में कमी होती है, मेरे में भी कमियां हैं। उस कमियों को हम कैसे दूर करें और एक बेहतर इंसान बन सके, आई थिंक दैट इज द एसेंस ऑफ लीडरशिप। एनडीए में और आईएमए वगैरह में मैंने सुना है कि जो हम बोलते ना हाउस द जोश, ये बहुत ज़्यादा फेमस हो गया था, बट उस मूवी के आने से पहले ये ऑलरेडी एनडीए में चलता था, ये जोश कैडेट्स में लाने। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके हिसाब से आपके जो सीनियर्स होते थे आपको किस तरह से ट्रेन करते थे, क्योंकि अंदर की बहुत ज़्यादा स्टोरीज अभी आई नहीं बाहर, तो कैसे ट्रेन करते थे वो आपको ऐसे? यू सी, एक नेशनल डिफेंस एकेडमी में एक बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि when you train together, you are like a group. You have to be like a cohesive unit. अगर एक लड़के ने गलत काम किया है, सपोजिंग, और वो चीज नोटिस में आ जाती है, लोगों को पता नहीं चलता किसने किया ये, then the whole course has to suffer for that. सारे कोर्स को पनिशमेंट दी जाती है, पर एक वर्ड नहीं निकलता किसी के मुंह से कि उसने किया है, पनिशमेंट से बचने के लिए। दैट इज दैट स्पिरिट विच द नेशनल डिफेंस एकेडमी टीचेस यू। कल आप अपने यूनिट में जाएंगे, जवानों को आप अपने लीड करेंगे बैटल में, हाउ विल दैट जवान गेट कॉन्फिडेंस इन यू इफ ही नोज के आप उसको एक स्केपबोर्ड बना दोगे, या अगर वो अटैक नाकामयाब हुआ तो आप उसको सैक कर दोगे? इट इज द लीडर हु हैज टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरीथिंग। द criticism is mine and the appreciation is of my team. अगर कोई अच्छा काम है तो वो टीम ने किया है, और अगर वो कमियां है तो वो फिर you have to own up and you should not say that it is because of my team. So that is that spirit which gets inculcated in you right from day one of the National Defense Academy. कोई रगड़े का आपको स्टोरी याद है कि रगड़ा खाया, बुरी हालत होगी बट मजा बहुत आया? ये देखिए, एक एनडीए में एक पनिशमेंट है विच इज नोन एज 7th heaven. 7th heaven.
ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। इसको सेवंथ हेवन क्यों बोलते हैं? हेवन इज मजा वाली जगह। अगर आप हेवन में जाते हो तो यू हैव फेस्ड व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स लाइक अ हेवन। अब वो सेवंथ हेवन क्या है? वो आपका जो हर एक कैडेट को कैबिन दिया हुआ है। नाउ उस कैबिन में दरवाजे तक कंक्रीट है, दरवाजे के ऊपर जालियां लगी हुई है, सो दैट अगर समटाइम जो कैडेट बंक कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो ऊपर से जालियों से अपने आप को खींच के, जो भी इंस्ट्रक्टर है वो देख सकता है अंदर क्या हो रहा है। सेवंथ हेवन इज कि जब आपने कोई भी गलती की, जैसे कि आज मैं स्टडी पीरियड में बैठा हूं, शाम को 7 बजे स्टडी पीरियड होता है एनडीए में, 1 घंटा कंपलसरी स्टडी टेबल पे बैठना होता है, और सारे दिन के रगड़े के बाद नींद आती है, तो हमारा इंस्ट्रक्टर चक्कर लगा रहा होता है, देख रहा होता है कि हर एक, और हमारे दरवाजे होते खुले, तो वो देख रहा होता है कि हर एक आदमी भी टेबल पे बैठा पढ़ाई कर रहा है, बिकॉज एनडीए में आपको ग्रेजुएशन डिग्री मिलती है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से। अब एक कैडेट अपने टेबल पे सोया हुआ है, ऐसे करके अपना सर लगा के टेबल पे सो गया वो, और वो पकड़ा गया, तो उसको सेवंथ हेवन में भेज दिया जाता है। सेवंथ हेवन इज द सेवंथ वायर, वो जो ऊपर जो वायर मेश लगा हुआ है, वो आई थिंक 10 या 12 वायर मेश लगे होते हैं। So you have to count on the 7th wire mesh, you have to hang yourself, and that wire mesh actually gets into your skin, and you have to keep on hanging for 7 minutes. 7th wire mesh and 7 minutes. So it is 7th heaven. आप गए हैं कभी उस पर? बहुत बार। ओके, ठीक है, ठीक है। तो अब बात करते हैं थोड़ा सा रेड सी के बारे में। तो रेड सी का जो अभी हमने देखा था, सुएज कैनाल में एक शिप फंस गया था, और ये प्रोबेबली एक अकेला और बहुत इम्पोर्टेंट रूट है जो कनेक्ट करता है वहाँ वेस्ट को और ईस्ट को। तो आपके हिसाब से इसका क्या इम्पोर्टेंस है वर्ल्ड के लिए और इंडिया के लिए भी? there are many such straits or seas from which sea traffic actually moves. पूरे वर्ल्ड का जो ट्रेड है, 90% ट्रेड इज फ्रॉम सी, एंड सी trade, why it is 90% is because you can move voluminous loads and at a very economical cost. Now from Asia to Europe and to Africa, the majority of the sea routes go through certain specific areas. सी में आप ये लंबा रास्ता भी ले सकते हो और छोटा रास्ता भी ले सकते हो. सो यू टेंड टू वर्क आउट द शॉर्टेस्ट रूट because that is the most economical route and also faster. So now if you have to move anything from say China से एशिया से अगर आपको यूरोप जाना है तो you have to go through the Red Sea. Now Red Sea takes you to the Suez Canal. From the Suez Canal you move on to the Panama Canal. So the route is like this. और आप अमेरिका तक पहुंच सकते हो, यूरोप तक पहुंच सकते हो, जर्मनी एंड ऑल दोज एरियाज. नाउ 30% ऑफ द वर्ल्ड कंटेनर ट्रैफिक मूव्स थ्रू द रेड सी एंड 18% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड फ्रॉम द रेड सी. अगर आप रेड सी को बंद कर दोगे फॉर रीजन विच आई जस्ट come to you, then you will have to go while the Cape of Good Hope, Cape of Good Hope
which is, you can say, another 46 hours you have prolonged your journey and hundreds of kilometers. So now what happens is that, what is the implication? First implication is that your shipping cost increases, your freight cost increases, and your insurance cost increases, which has a direct impact on the inflation. But then your availability of your vessels also reduces, because यही ships आपकी recycle होती है. अपना एक ट्रिप के बाद पहुंचती है डेस्टिनेशन में तो दूसरी ट्रिप पे लोड होती है, तो उतना ही लीड टाइम, हम जिसको बोलते हैं ना सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, उतना ही लीड टाइम इफेक्ट होता है. नाउ इफ यू हैव अ कॉन्फ्लिक्ट देयर, जैसे यमन इज अ कंट्री वेयर द बाबा मंडप, जो आपका जो एरिया है जहां से आपका जो रेड सी स्टार्ट होता है इनटू द स्वेज कैनाल, that area is totally dominated by the Houthis, and Houthis control 60% of Yemen. There is a civil war going on there. Houthi rebels. Yes. Now Houthi rebels are dominating that western portion of Yemen, which is overlooking the Red Sea, and therefore, with the help of Iran, they have been equipped with missiles, they have got drones, and they are attacking the ships. 74 attacks have taken place in the last about 14 to 16 months. So you can see the impact or the havoc. You have the American fleet in the Mediterranean Sea. You have the most sophisticated of weaponry there, but you have not been able to curb this, because it's very difficult to actually curb, because हर एक शिप में आप अपनी फौज तो नहीं भेज सकते ना. जो भी आपके मर्चेंट, आपके वेसल्स हैं, आप उनके अंदर एक फौज का टुकड़ा तो नहीं लगा के भेज सकते, इतनी आपके पास आई नहीं फौज. दूसरा, इतनी आप उस पर वेपनरी भी नहीं लगा के भेज सकते, बिकॉज दे आर मर्चेंट वेसल्स, दे आर नॉट मेंट फॉर दैट. They're not warships. What you can do is you can keep a dedicated force available, and moment you come to know there has been an attack, you can move the force to that area. That is being done. But that no merchant, no industry, no multinational company wants to take the chance. क्यों? Because अगर आपका एक शिप अगर वो सिंक कर देंगे, और ये जो फ्लीट वहां पे मौजूद है इसको अगर वो रोक नहीं पाएगी, तो यू हैव लॉस्ट दिस एंटायर मर्चेंडाइज. व्हाई शुड आई वुड prefer to go by Cape of Good Hope, and I'll go around Africa and I'll go there. I'm prepared to spend some extra money. The same problem is going to happen in the Strait of Malacca in times to come, because China का 70% of the traffic is from Strait of Malacca. जिस दिन हमने Strait of Malacca को कंट्रोल कर लिया, शुभम, we have won the battle against China. सर बट इसके रिगार्डिंग में मैं देख रहा था थाईलैंड अपना एक आर्टिफिशियल कैनाल बनाने की शुरू कर रहा है, तो शायद उसका सब्स्टिट्यूट होगा ये. जितने भी आर्टिफिशियल कैनाल्स हैं ना, दे हैव द ड्रॉबैक्स. फर्स्टली इज देयर लेंथ एंड ब्रेड्थ इज लिमिटेड, सो आपका जो भी ट्रैफिक होगा, आपका जो कंटेनर आपका ट्रैफिक होगा वो लिमिटेड होगा. दीज कैनाल्स आर ओनली एन ऑल्टरनेटिव रूट, कि अगर आपका मलक्का बंद हो जाएगा तो आपके पास एक रूट है जिससे आप अपने मर्चेंडाइज को या अपनी शिपिंग को आप वहां से डाइवर्ट कर सकते हैं. सो टुडे, for any student of supply chain management, for any student of geopolitics, he must understand that you have to develop alternative routes, and that is why India Middle East Economic Corridor,
which I'm just saw coming to IMEC, is going to a large extent be an alternative for your Red Sea Yes. in times to come. हम्म, वहां पे भी ईरान कैन प्ले डर्टी. इसको वहां पे भी एक एक्चुअली पोर्शन है जहां पे ईरान जो वहां पे इन्फ्लुएंस कर सकता है, सऊदी के पास का एरिया है, बट देन यू हैव टू टेक दैट चांस. इस कॉरिडोर में हम पाकिस्तान को भी बाईपास कर देंगे, नीचे जाके अफगानिस्तान से सीधा. You go straight to UAE. You have a railway line into Saudi Arabia, तो उसको by rail आप जा रहे हो. Then Saudi Arabia से आप उस तरफ चले जाओ, हाइफा पोर्ट की तरफ चले जाओ, इजराइल की तरफ चले जाओ, and then on to Greece. It actually ends at Greece, and then of course that is Europe. तो अगर ब्लू इकोनॉमी की हम बात करें तो आपको लगता है पायरेसी बहुत बड़ा चैलेंज है अभी के लिए, क्योंकि इंडियन नेवी ने भी देखा, हमने ऑपरेशंस किए. Piracy has always been a challenge, especially in the African belt. आपने देखा Somalia and all these places, all these pirates have been hijacking, taking money and leaving it, this kind of thing. These challenges will always remain in the world, but these challenges will not have any major impact on the world economy because they are far and few in between. तो ये तो हो गए. देखो आप डकैतियां होती है ना, कंट्रीज में भी होती है, डकैतियां होती है, रॉबरीज होती है, ये उससे कंट्री की इकोनॉमी तो नहीं खत्म हो जाती ना. तो ऐसे पार्ट एंड पार्सल होते.